In my earlier video, I uploaded noun clause, and in that video we have discussed what noun clause is and the different functions of a noun clause. Today we will discuss another part of a complex sentence, that is called relative clause or adjective clause or adjective clause or adjective clause. So we all know clause, that means it's a part of a sentence and it has a finite verb, and it also required a main clause to make its meaning clear. Then before going to the adjective clause, first of all we discuss what adjective is. What adjective is? We know the word that describes a noun or that qualifies a noun is called adjective. So here we will do the clause, that means the clause or that clause describes the noun, but that clause gives some extra information or gives some more information about the noun. That is called relative clause. For example, I have already read the book which you gave me. I have already read the book which you gave me. So here I have written a complex sentence that is on a relative clause. I have already read the book which you gave me. जदि मैं इटा ब्रेकअप करी ताले दीटा का सेंटेंस कौन हम ना आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक, आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक, one sentence. Another sentence, you gave me the book. You gave me the book. I have already read the book and you gave me the book. ताले एठी हमरो कोन आसुची दीटा का भीतर कॉमन नाउन फ्रेज की रहउची the book, and in this sentence also the book common noun phrase. ताले relative clause ना एठी कहला I have already read the book, तापर आउ गोटे इन्फॉर्मेशन दला जे you gave me the book, से बहिटा तमे मते देइथिलो. ताले that means it gives some extra information about the book. ताले हमर एटा को क्लॉज आमे पढिले adjective clause. ताले adjective रो काम कोन गोटे नाउन को क्वालिफाई करिया, गोटे नाउन को डिस्क्राइब करिया. तो दैट मींस आमे जो क्लॉज टी करिवा से क्लॉज टी करिवो ना ए जो कॉमन नाउन फ्रेज द बुक रहिछि आको डिस्क्राइब करिवो, बुझियला. तापर आमे क्लॉज टा कोठु स्टार्ट करिवो. ताले आमे फर्स्ट वाक्य देखिबा आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक. ताले द बुक टा को पोजीशन अछि ना ऑब्जेक्ट पोजीशन रे रहिछि, बुझियला. तेनो ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन जेतेबेले थिबो सेतेबेले आमे फर्स्ट वाक्य को संपूर्ण लिखिया को पढिबो. ताले हमर से फर्स्ट वाक्य संपूर्ण आसले कोनला ना आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक. देन बुक इज ए मटेरियल, तो या पे हमें डब्ल्यूएच वर्ड व्यवहार करिया व्हिच, बुझियला. तो जेतलो मु व्हिच लगै देली, व्हिच टा मु कहा पय यूज कली द बुक पय यूज कली. तो दैट मींस द बुक पय बुक टा को मु रिप्लेस कली को वर्ड रे ओटे रिलेटिव वर्ड दैट इज व्हिच, ओटे रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज व्हिच. देन the rest part of the second sentence, you gave me. Understand? So this is the relative clause. I have already read the book. Then this word, this wh word, which it describes this noun phrase, the book, and we use which replacing the book. The book place रे हमें which व्यवहार करिचे. Then which you gave me. So that's the completion of the clause. Understand? Here why we use which? Now because book refers to a material. That's why we use which. If there be a person, then we will use who or whom, whose as per the context. Understand? Now come to the second sentence. The book which is laying on the table belongs to my friend. The book which is laying on the table, which is laying on the table, belongs to my friend. Understand? So this is a complex sentence. The book which is laying on the table belongs to my
फ्रेंड ताले आको में ब्रेकअप करी दीटा सेंटेंस लिखले कोन हबो ना द बुक belongs to my friend. Then another sentence is the book is laying on the table. The book is laying on the table. Understand? So आकोतले हम ब्रेकअप कर देले एई बडी दीटा सेंटेंस बारी पला एटा हला आई सेंटेंस एटा हला बी सेकंड आई सेंटेंस तले दीटा का सेंटेंस से तले आड हे छै रिलेटिव क्लॉज हे छै से तले ए सेंटेंस टी आसी छै द बुक व्हिच इज लेइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माय फ्रेंड तले हम देखिबा केमिति हला ना देखा कॉमन नाउन फ्रेज किए रहिला द बुक and its position at the subject position. So when the common noun phrase is at the subject position, we will start the clause just after the subject. जेतेबेले common noun phrase ता subject position रे थिबो सेतेबेले हम clause टा को just after the subject पर start कर दबा ताला हमर एठी आसी गेला the book तापर हम हमर relative clause होची adjective clause माने हम noun टा को define करिबा noun टा को describe करिबा ताले एठी जे the book रो it means को book टा अंडरस्टैंड ताले सेठी हमर आसी कोन द बुक टा ओटे मटेरियल तेनु सेट पे आसी गला कोन व्हिच द बुक व्हिच आसी गला तापर हम सेकंड वाक्य जो दो रिलेशन रहला इज लेइंग ऑन द टेबल द बुक व्हिच इज लेइंग ऑन द टेबल तापर हम रहला फर्स्ट वाक्य बिलोंग्स टू माय फ्रेंड अंडरस्टैंड काहे के एठेला ना हमर बुक टा कुठे आसला सब्जेक्ट पोजीशन तेनु जेतोले कॉमन नाउन फ्रेज के हमर सब्जेक्ट पोजीशन आसीबो सेतोले हम जेतोले क्लॉज करिबा हम ठीक एग्जैक्टली सब्जेक्ट पर स्टार्ट कर दबा क्लॉज टू आमे जो डब्ल्यूएच वर्ड रो सेठी रिक्वायरमेंट थिबो सेही डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करिबा एवं सेकंड वाक्य अंश जो दो जिंस थिबो सेतक तापाकु न तापर फर्स्ट वाक्य रो जो रेस्ट अंश ताम छेटा सेतक तादरे जोडिबो एई भली भाबरे हम क्लॉज को कंप्लीट करिबा अंडरस्टैंड देन कम टू अनदर एग्जांपल the boy who always gives me book is my friend the boy who always gives me book is my friend the boy who always gives me book is my friend ताले कोन आसला द बॉय हु ऑलवेज गिव्स मी बुक इज माय फ्रेंड ताले आको में पुनी ब्रेकअप करिया दीटा सेंटेंस करिवा कोन कोन दीटा सेंटेंस रही छी ताले द बॉय इज माय फ्रेंड तापर आसला हु द बॉय always gives me book the boy बा हम लिख परिबा ही who always gives me book तले बर्तन हम दीटा सेंटेंस को हम तले ब्रेकअप कर देले त हमर मेन टोटल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ता आगो कोन थिला the boy who always gives me book is my friend ताको हमें ब्रेकअप कर देला पर दीटा का सिंपल सेंटेंस हमरा आसला कोन ना एटा आई एटा डबल आई हम कर दबा फर्स्ट आसला द बॉय इज माय फ्रेंड एटा गोटे सेंटेंस हे गला द बॉय बा ही हम ता जगह ऐड करी कि ही ऑलवेज गिव्स मी बुक एटा गोटे सेंटेंस हे गला ताले एठी जो दिनसटा कोला ही ऑलवेज गिव्स मी बुक दैट मींस सेटा ई बॉय विषय को हला ना बॉय रे गोटे वर्क विषय को हला एक्स्ट्रा वर्क विषय ताले एई तक दिनस काहा को डिस्क्राइब करछि बॉय नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करछि अच्छा तापर हम आसबा एठी रिलेटिव प्रोनाउन कोन यूज करिवा द बॉय हमर आस्टे जोडा पर्सन पे हम यूज करिवा हु तेनो एठी आसे छि हु देखो द बॉय हु तापर हम आसबा कोठी ना द बॉय तापर सेकंड वाक्य कोले आसबा हु ऑलवेज गिव्स मी बुक देन फर्स्ट इज माय फ्रेंड अंडरस्टैंड एठी अच्छा द बॉय पर काय ना हमर कॉमन नाउन फ्रेज ता केसे द बॉय कारण दीटा का एक्टिविटी सेही बॉय रे बुझी छि तेरो सेति पे हमको बॉय टा को डिस्क्राइब करिया पड़ी गला बा बॉय टा को डिफाइन करिया पड़ी गला ना नहीं तेनो जेतु हम एठी बॉय टा को डिफाइन करले बॉय टा ओटे पर्सन ताला हम सेति पे डब्ल्यूएच वर्ड कोन आनले हु आनले या पूर्वपुर हम मतलब द बुक विषय करतले बुक टा मटेरियल देला तेनो मटेरियल पे हम डब्ल्यूएच वर्ड आनतले व्हिच एठी जेतु पर्सन आसेला हम ता पे नै आसले
हु बुझेला ताले एथु जोड़े जिनस हम कंक्लूड कले जेतेबेला हम कोनोसी पर्सन विषय नै क्लॉज करियार अछि जेतेबेला हम हु व्यवहार करिया डब्ल्यूएच वर्ड हु बा हुम आउ हुज जदि पॉजिटिव प्रोनाउन टाइप रहितो सेट हुज व्यवहार करिवा आउ जेतेबेला कोनोसी मटेरियल हेतिबो व्हिच व्यवहार करिया बेसिकली रिलेटिव क्लॉज रे हम एतक डब्ल्यूएच वर्ड व्यवहार करिवा अंडरस्टैंड तापर हमर आसीबा I have already read the book which you gave me. I have already read the book that you gave me. I have already read the book you gave me. ए जो बुक ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर दै छे किंतु एठी गोटिए दिनसो देछि I have already read the book which oblique that you oblique then another thing is no relative pronoun which you gave me understand तले ए जो दीटा तीनटा दिन सब लेखिली आमे which यूज करि परिबा that यूज करि परिबा no relative pronoun मध्य यूज करि परिबा तले एठी no relative pronoun यूज करिया माने केमिति कोन करिबा कोठी तले no हबो ना जेतेबेला हमर एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज बा कॉमन नाउन फ्रेज टी ऑब्जेक्ट जगह रे आसुथिबो सेतेबेला हम रिलेटिव प्रोनाउन न बसेले मध्य चलिबो बुझियला जेतेबेला हमर एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज एटी हमर एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज टी किसे आई हैव ऑलरेडी रीड द बुक यू गेव मी द बुक तेनो हमर एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज बा कॉमन नाउन फ्रेज ता कोठी रहछ ऑब्जेक्ट पोजीशन होछि तेनो जेतेबेला एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज टी कॉमन नाउन फ्रेज टी हमर ऑब्जेक्ट पोजीशन रे रहइबो सेतला हम रिलेटिव प्रोनाउन न लगेले भी से वाक्यटी रिलेटिव प्रोनाउन थिला भली मध्य बुझेइबो बा सेठी मटेरियल थिला हम व्हिच लगेइ परिबा दैट लगेइ परिबा बा किछि न लगेइ कि मध्य हम लिखि परिबा बट यदि एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज ता सब्जेक्ट जगह रे थिबो डेफिनेटली हम यूज करिया पड़िबो रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टैंड तापर आउ केतोडे एग्जांपल अछि हम वन बाय वन डिस्कशन करिबा फर्स्ट what example देछि the birds are chirping the birds live in the neighborhood the birds are chirping the birds are chirping the birds live in the neighborhood the birds live in the neighborhood तले एठी हमर जोड़े सेंटेंस आसला कोन ना द बर्ड्स आर चिरपिंग द बर्ड्स लिव इन द नेबरहुड तले एथे कॉमन नाउन फ्रेज की आसला द बर्ड्स यार पोजीशन कोठ रहिला ना सब्जेक्ट पोजीशन देन इफ द नाउन फ्रेज इज इन सब्जेक्ट पोजीशन द क्लॉज स्टार्ट्स एग्जैक्टली आफ्टर द नाउन फ्रेज तो हम क्लॉज के स्टार्ट करबा ए नाउन फ्रेज पर अच्छा एठी जेतु बाड आसिला हम एठी व्हिच यूज करि परिबा दैट भी यूज करि परिबा मटेरियल हेतिले हम व्हिच व्यवहार करिया जोठी नॉन मटेरियल है तो सेठी हम दैट मध्य व्यवहार करि परिबा ताला हम एठी क्लॉज कले कोन हबो ना द बर्ड्स व्हिच oblique that ताला हम पळे आसे तापर कोठी की सेकंड वाक्य live in the neighborhood live in the neighborhood ये सरी गला सेकंड वाक्य जोड़ी देले तापर आसी गला कोठी फर्स्ट वाक्य आर चिरपिंग अंडरस्टैंड नो कॉमा एसी अनदर थिंग इज कॉमा जेतले कॉमा हमें केतले यूज करिवा ना जेतले हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करिवा सेतले हमें कॉमा यूज करिवा एटा हमर चलछि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तापर हम तले नॉन डिफाइनिंग कथा डिस्कशन करिवा सेटा को हम सेतबेले डिस्कस अच्छा हम कहि दोछि आगो एटा को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज काहे कहउछि ना एठी कोन होइछि ना द बर्ड्स वी आर एक्जेक्टली नॉट क्लियर हु द बर्ड्स बा व्हाट द बर्ड्स सुना को कोन हमें जानिने बा को प्रकार बर्ड हमें जानिने अंडरस्टैंड किंतु हमें तो नॉन डिफाइनिंग करिया केतले ना जेतले ए एंटीसीडेंट नाउन फ्रेज ता हमको ऑलरेडी नोन
जेमते हमें फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड रे कले माय मदर होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग देन अनदर थिंग जो माय मदर कुक शो रे माय मदर और होस्टिंग ए गोटे सेंटेंस किछि थिला सेतरे सेठी कोन थिला ना माय मदर मीन्स गोटे पॉजिटिव प्रोनाउन लागि के ऑलरेडी डिफाइन हे गेतला तो सेति पय हमें से जगह रे कोन करते ना तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करथिले तेणु जेतोले पर्सनल प्रोनाउन आसी गोटे पॉजिटिव प्रोनाउन आसी जो गोटे नेम प्रॉपर नाउन पळे आसीबो सेउडा को ऑलरेडी डिफाइन तेणु ताकू जेतोले हमें क्लॉज करिबा सेटा हमरो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हबो आ जेतोले नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करे सेतोले हमें कमा दबा नचेत हाइफेन देकिरे लेखिबा अंडरस्टैंड किंतु एठी हम डिफाइन करूचे हम एठी डिस्क्राइब करूचे का द बर्ड्स तक को बर्ड्स तक ना द बर्ड्स व्हिच लिव इन द नेबरहुड तेणु हमको एठी कोन करे बोला बर्ड टाको डिफाइन करिया बोला को पक्षी माने ना दो जो लिव इन द नेबरहुड जो माने कि व्हिच लिव इन द नेबरहुड जो माने नेबरहुड रे रहतिया पक्षी गुडी हमको बर्ड टा डिफाइन हेनी को प्रकार बर्ड आमे जतले एठी क्लॉज कला परे हमें श्योर हेले को बर्ड बे किनु जदि एठी माय मदर लिखि दिया जिवो कि आवर इंस्टीट्यूशन लिखि दबा कि मिस्टर महापात्र लिखि दबा तले एडा ऑलरेडी डिफाइन हे गेल तले हम सेठी तले हम कोन करिबा हम सेटा नॉन डिफाइन करे कारण हम ताको बुझिया दरकार आमे ताको विषय आ गोटे जिंस कोन कहिबा तले सेतला हम सेटा हे जिवो नॉन डिफाइन आ सेई जगह रे हम कमा दबा किबा हाइफेन देके लिखिबा बुझि हेले सो एठी हम आसीला कोन तले क्लॉज ता बुझि गेला द बर्ड्स व्हिच और दैट भी हम यूज करि परिबा दैट लिव इन द नेबरहुड आर chirping understand now come to the another example I write with the pen my father bought the pen for me I write with the pen my father bought the pen for me two sentence I write with the pen my father bought the pen तले एथरा हमर कॉमन नाउन फ्रेज की आसला the pen then the pen so in the first sentence the position of a pen is as the object in the first sentence the position of a pen is as the object so if the noun phrase antecedent noun phrase is at the object position for making clause we have to write the first sentence completely तले हम first sentence to completely लिखिबा I write with the pen I write with the pen तापर एठी पळे आसला पेन ता हमर ओटे कोन हेला मटेरियल हे गेला तले जेतु मटेरियल एठी रिलेटिव प्रोनाउन हम कोन हे ना व्हिच सो आई राइट विथ द पेन व्हिच माय फादर बॉट तापर एठी कोन हे द पेन ता को रिप्लेस करछि के व्हिच तो द पेन बे यूज करबा कने तले आई राइट विथ द पेन व्हिच माय फादर बॉट फॉर मी understand then come to the another example the sick were delighted Florence Nightingale nursed the sick the sick were delighted the sick were delighted the sick were delighted Florence Nightingale Florence Nightingale nursed them so look at there are two sentences the sick were delighted Florence Nightingale nursed them so here the them is used for the sick Florence Nightingale nursed the sick लिखि परिबा बा them लिखि परिबा the sick लिखि परिबा दा them लिखि परिबा ताले एठी हमर एंटीसेडेंट कॉमन नाउन फ्रेज की आसला the sick
फर्स्ट सेंटेंस रे हमर द सीक टा कोठी अछि स्टार्टिंग पोजीशन दैट मींस एट द सब्जेक्ट पोजीशन ताले जेतले कॉमन नाउन फ्रेज हमर सब्जेक्ट पोजीशन थिबो ताले हम सेतले क्लॉज का कोठु स्टार्ट करिवा ना ठीक एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट ताले हमर एठी आसीला कोन द सीक then come to the sick were delighted Florence Nightingale nursed them तल them आसीला मीन से टोटो कोन जेमति हमर they रो हमर पॉजिटिव फॉर्म आसला they are ऑब्जेक्ट फॉर्म आसला them तल ठीक सेही बोली आमे एठी wh वर्ड रो ओटा ऑब्जेक्ट फॉर्म टे यूज करिवा तल हमर एठी आसी जिवो whom the sick whom then come to the second sentence Florence Nightingale nursed Florence Nightingale nursed the sick whom Florence Nightingale nursed तापर पळे आसे सेकंड वाक्य तो we are delighted the sick whom Florence Nightingale nursed we are delighted. Understand? So that's all for today. We will discuss more in the next class.